ایوب، شبلی فراز، حامد رضا اور زرتاج گل سمیت 9 ارکان پارلیمنٹ نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے سزا یافتہ ارکان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رائے حیدر علی خان، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حسن نواز، زرتاج گل کو بھی نااہل قرار دیا گیا۔ رکن پنجاب اسمبلی محمد انصر اقبال، رائے محمد مرتضی اقبال، جنید افضل صاحب کو بھی ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ارکان کو 63(1)H کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ نااہل ہونے والے ارکان کی نشست خالی قرار دے دی گئی۔ ATC فیصل آباد نے 9 مئی مقدمات میں PTI رہنماؤں کو سزا سنائی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف اراکین قومی اسمبلی کا پارلیمنٹ سے باہر جانے سے انکار۔ اجلاس ختم ہونے کے باوجود اراکین کے لابی میں ڈیرے۔ PTI فرینڈلی احتجاج کی اندرونی کہانی۔ اسپیکر سے ملاقات میں خود درخواست کی کہ گرفتاری سے بچایا جائے۔ اسپیکر نے یقین دہانی کرائی کہ وہ پارلیمنٹ کی حدود سے ان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ PTI اراکین نے 2 بجے پارلیمنٹ سے نکلنا تھا مگر جان بوجھ کر تاخیر کرتے رہے۔ حیرت انگیز طور پر چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر پارلیمنٹ آئے ہی نہیں۔ ٹرمپ کا آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر ٹیرف میں اضافے کا اعلان۔ امریکی صدر کی بھارت پر پھر ٹیرف میں اضافے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے اور میں اس سے خوش نہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر ٹیرف میں اضافے کا اعلان متوقع ہے۔ بھارت کے 25% ٹیکس میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت ایسا کر رہا ہے اور میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف یوم استحصال کشمیر پر قوم ایک آواز۔ ملک بھر میں کشمیریوں کی حمایت میں ریلیاں اور مظاہرے۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدام کی مذمت۔ حقیقی خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کا ساتھ دینے کا عزم۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی جبکہ ملک بھر میں ریلیاں، سیمینارز اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ یوم استحصال کشمیر ہمیں بھارت کے ان یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی یاد دلاتا ہے جو اس نے 5 اگست 2019 میں پلوامہ کے ایک ڈرامے کے بعد رچایا اور جموں اور کشمیر کے حوالے سے اس نے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ بھارت کی کشمیر کو اپنی ریاست بنانے کی کوشش قبول نہیں کریں گے، ساگدار نے واضح کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان مسئلہ کشمیر حل ہونے تک سفارتی امداد جاری رکھے گا۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بھارت کو اپنے تمام غیر قانونی اقدامات کو واپس لینا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا تھا کہ کشمیر ہماری تاریخ کا حصہ اور شہرک ہے۔ کشمیری تنہا نہیں، ایک دن آئے گا جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا۔ آج کا دن تاریخ کے ان سیاہ ترین دنوں میں شمار ہوگا کہ جب بھارت نے ایک مذموم سازش کے تحت اپنا غاصبانہ قبضہ مسلط کرنے کی کوشش کی، مگر بھارت کو یہ معلوم نہیں کہ یہ وہ وادی ہے جس نے برہان وانی جیسے نوجوان پیدا کیے کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو گھروں سے اٹھنے والے جنازوں کے اوپر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے۔ ایوان کشمیری عوام کی جرأت، بہادری اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے، جو بھارتی قبضے کے خلاف عزت و وقار اور ثابت قدمی کے ساتھ مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی یک طرفہ اقدامات مسترد۔ قومی اسمبلی میں 5 اگست کو بھارتی اقدام کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے متفقہ قرارداد پیش کی۔ ایوان بھارتی جارحانہ رویے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ بھارتی اقدامات بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ورزی ہے۔ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ قرارداد کا متن سندھ اسمبلی میں بھی مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ آج سندھ اسمبلی میں کشمیر کے معاملے پر تمام جماعتیں اختلافات بھلا کر متحد ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کیا۔ آپسی اختلافات اپنی جگہ پہ، کشمیر کے معاملے میں سندھ اسمبلی کا ہر ممبر جو ہے وہ یک آواز ہے۔ جو مقبوضہ کشمیر ہے جس پہ قبضہ ہے بھارتیوں کا، اس پہ نریندر مودی نے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو بلڈوز کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بدترین انسان دشمن پالیسی نریندر مودی اور بھارتی حکومت کی ہے، جس کی جس حد تک بھی مذمت کی جائے وہ کرے۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔
सदर आसिफ जरदारी ने कहा, भारत ने आबादियाती साख्त और सियासी नक्शे को तब्दील करने की साजिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के 5 अगस्त के इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन के खुले खिलाफ वर्जी करार दिया। बिलावल भुट्टो की भी भारतीय हुकूमत के एकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत। कहा, मोदी राज का मकसद कश्मीरियों की शनाख्त को मिटाना है और उनकी आबादी का तनासुब तब्दील करना और उन्हें सियासी तौर पर बेइख्तियार बनाना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, कश्मीरी अवाम भारत के गासिबाना क़दाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत की जदोजहद जारी रखेंगे और भारत के गासिबाना और गैर अखलाकी कब्ज़े को कभी कबूल नहीं करेंगे। अफ़वाज पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में हर महाज पर उनके साथ। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा गैर कानूनी और इंसानी अलमिये को बढ़ा रहा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल ऑफ एयर चीफ्स का कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। ISPR का कहना है कि भारत का जाबिराना रवैया, जंगजूयाना बयानिया और इश्तियाल अंगेज इक़दामात जनूबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल में बड़ी रुकावट हैं। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन हल कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक खत्ते में देर पा अमन के लिए नागुज़ीर है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR का नया नगमा जारी। नगमे में भारतीय जुल्म के खिलाफ गूंजदार पैगाम और कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद को सलाम पेश किया गया। भारतीय जुल्म के बदौलत जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर आज भी शोलों में जल रही है। अपने लहू से हक की दास्तान लिखने वाले कश्मीरियों का भारतीय तसल्लुत से आज़ादी लेने का अज़्म। 50 बरस बाद बांग्लादेश में सब्ज हिलारी परचम की बहार। जश्न आज़ादी पर ढाका में बांग्लादेशी परचम के साथ पाकिस्तानी परचम भी फरोख्त के लिए पेश। बांग्लादेशी शाहराहों पर पाकिस्तानी परचम के फरोख्त ने भारतीयों के दिल पर छुरियां चला दी। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी परचम की ढाका की सड़कों पर फरोख्त को भारत की बड़ी नाकामी करार दे रहा है। बगैर रुखसत गैर हाजिरी, शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने का इंदिया। नौशीन इफ्तिखार ने शेख वकास की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश की। नौशीन इफ्तिखार के मुताबिक शेख वकास मुसलसल 40 दिन से ऐवान से गैर हाजिर हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, रुकन कौमी असम्बली 40 दिन तक गैर हाजिर हो तो स्पीकर ऐवान के नोटिस में लाता है। आर्टिकल 64 के तहत ऐसे रुकन के नशिस्त को खाली करार दिया जा सकता है। NE 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मअतल। जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी मअतल। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की दरख्वास्त पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मअतल किया। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता माह जमशेद दस्ती की तालीमी इस्नाद को जाली करार देते हुए उन्हें कौमी असम्बली की रुकनियत के लिए नाअहल करार दे दिया था। 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदा मुंतखब ऐवान को 1.5 मिनट में घर भेज दिया गया, इसलिए कि आपको वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से जान छुड़ाना थी। हम पहले भी तैयार थे, वजीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं, लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में मैंने कल भी अर्ज किया था, डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। सियासतदान की तरबियत ही डायलॉग। वफाकी हुकूमत की अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मुज़ाकरात की दावत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आएँ हमारे साथ बैठे और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, बात करने से ही हल होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लिमान की बेतौकीरी को रोका गया। पूरी दुनिया में जजेस की तकर्रुर का यही तरीका राइज है। कभी ये कहते हैं कि 5 अगस्त अरूज होगा इस एहतजाज का, कभी कहते हैं शुरू होगा, कभी कहते हैं इस्लामाबाद आएंगे, कभी कहते हैं अपने शहरों में करेंगे। कंफ्यूजन इनके पार्ट पे है जनाब स्पीकर। असेंबलियां तोड़ दी, इस्तीफे दे दिए, लॉन्ग मार्च कर लिया, 9 मई कर लिया, फुफियां निकल आई, बेगम साहिबा निकल आई, ये बच्चे बेचारे आके क्या कर लेंगे। खुफिया निकल आई, बेगम निकल आई, अब बच्चे आ गए तो क्या कर लेंगे। PTI कभी 5 अगस्त को एहतजाज का उरूज, कभी आगाज कहती है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने PTI को कंफ्यूज करार दे दिया। अज़मा बुखारी ने एक्स पर लिखा कि उन्हें दिली हमदर्दी है, बेचारी आलिया हमजा को 4-5 गाड़ियों के साथ ट्रैफिक रोक कर क्लिप बनाना पड़ रहा है। वैसे अवाम साइडों से रास्ता निकाल कर उनको क्रॉस कर रहे हैं। बहन, ट्रैफिक के साथ वीडियो बनाने के बजाय लाखों कारकुन दिखाओ।
जहाज़ों की कंपनीज जो है जिनके पास लाइसेंस है कैरी करने चलाने का, उनको भी हम इजाज़त दे रहे हैं ताकि मैक्सिमम ज़ायरीन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकें ईरान में और इराक़ में इस अरबाइन के लिए। लेकिन रिस्क जो है वो रोड का जो है अवॉइड करने के लिए हमने ये सारी इजाज़तें दी हैं और लोग उसको अवेल भी कर रहे हैं। ज़ायरीन के ज़मीनी रास्ते से ईरान और इराक़ जाने पर पाबंदी लगाई गई है। फ़िज़ाई रास्ते से जा सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं एविएशन वज़ारत दिफा का हिस्सा है। ज़ायरीन के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की भी इजाज़त दे दी। बज़रिया रोड ज़ायरीन की रवानगी बहुत बड़ा रिस्क है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अदालतें करप्शन का हिस्सा हैं। हमारा कौन सा जज करप्ट है अच्छी तरीके से जानता हूँ। इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। जमीन के लेन देन से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद ना होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी स्टेट काउंसिल और जिला इंतजामिया पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि मुझे सब पता है कि इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। 3 मरतबा अदालती हिदायत के बावजूद अदायगी क्यों नहीं की गई। चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अदालत बुलाकर 2 मिनट में कानून सिखा दूंगा। अदालत के अपने हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत, समात मुलतवी। पंजाब असेंबली में जमा शुगर कैन कमिश्नर की ऑडिट में संगीन गफलत का इंकशाफ। माली साल 2021 और 22 के दौरान शुगर कैन कमिश्नर की गफलत से किसानों को अरबों रुपए की अदायगी अल्तवा का शिकार हुई। मजमूई तौर पर 2 अरब 89 करोड़ 33 लाख रुपए की किसानों की अदायगियां शुगर मिल से वसूल ना हो सकी। शुगर मिल्स की 1 अरब 75 करोड़ 30 लाख रुपए की असल वाजिबुल अदा रकम रिकवर ना की जा सकी। अदायगी में ताखीर के बायस 1 अरब 14 करोड़ 2 लाख रुपए सूद कीमत में भी वाजिबुल अदा हो गए। यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों की मुदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद, वजाहत तलब करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की शमूलियत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान से ताहाल कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया। इल्ज़ामात के हक़ में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया गया। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुक्काम के साथ उठाएगी। सरबराह पाक बहरिया को तुर्की में आला अस्करी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क नेवल कमांडर, वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें, 2 तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने तुर्क नेवल तंसीबात का दौरा भी किया। टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी का इख्तियार FBI अफसरान से वापस। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पर गिरफ्तारी का फैसला कमेटी करेगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारियों के खिलाफ हिफाजती इक़दाम मुतारिफ 2 लाख रुपए से ज्यादा निस्फ नकद अखराजात को आमदनी समझने की शर्त वापस। अफसरान को टैक्स रिफंड क्लेम्स को जबरी तौर पर कम करने के इख्तियारात भी महदूद कर दिए। सिंध में असलहा डीलरशिप का शर्मनाक स्कैंडल बेनकाब। पोशीदा अफराद के नाम पर असलहा लाइसेंस बदस्तूर फाल। गैर कानूनी खरीदो फरोख्त उरूज पर महकमा दाखिला और नादरा का पोर्टल गैर फाल। दर आदम खेल से आए अफराद ने दुकानों को असलहे से भर दिया। अफसरान के तबादलों के बाद निज़ाम दरहम बरहम। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी और हुकूमती चश्मपोशी से सूबा शदीद खतरात की लपेट में आ गया। पार्लियामेंट में कॉकरोच राज। अरकान पार्लियामेंट के खाने से कॉकरोच निकल आए। कौमी असम्बली लाउंज में रखे खानों में कॉकरोचेस का मटर गश्त। अरकान कौमी असम्बली के लिए लगाए गए बूफे में कॉकरोचेस का हमला। रोटियों में भी कॉकरोच घूमते रहे। गजा में सिहूनी दरिंदगी। 24 घंटों में मजीद 79 फलस्तीनी शहीद, 644 जख्मी। इमदाद के मुंतजिर 52 अफराद भी शामिल। शौदा की मजमूई तादाद 61,000 से तजावुज कर गई। फाका कशी से एक बच्चे समेत मजीद 8 फलस्तीनी चल बसे। तादाद 188 हो गई। गजा में यौमी 28 बच्चे जिंदगी की बाजी हारने लगे। 5 साल से कम उम्र 3,20,000 बच्चों को मौत का सामना। इजरायली मीडिया ने नेतन्याहू के गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे से पर्दा उठा दिया। मॉनसून बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों का इम्कान। NDMA ने मुमकिन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खदशे पर अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में भी तेज बारिशों की पेशगोई। भारतीय रियासत उत्तराखंड में मौसमियाती तब्दीली का भयानक नज़ारा।
क्लाउड बर्स्ट से बरसाती नाला देखते ही देखते दरिया में तब्दील हो गया। पानी अपने साथ मिट्टी के तोड़े भी लाया जिसने पूरा गांव तबाह कर दिया। अब तक 5 अफराद के हलाक और मुतादिद के लापता होने की इतलात हैं। बाबर आजम की कौमी T20 स्क्वाड में वापसी का इम्कान। ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान के फिटनेस मसाइल ने बाबर आजम की एंट्री के इम्कानात बढ़ा दिए। एशिया कप स्क्वाड में बाबर आजम की शमूलियत फखर जमान की फिटनेस रिपोर्ट से मशहूर। फखर जमान वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान अनफिट हो गए थे। नेशनल अकेडमी में रीहैब के अमल से गुजरेंगे।